Hello students, in today's session we are going to cover our new chapter number 2, accounts of not for profit concern. In today's session, government textbook page number 63, we are going to cover introduction, meaning of not for profit concern, and features of not for profit concern. Okay, so let us begin. What is not for profit concern? As I told you, we are going to cover introduction, meaning, and features. So far, we studied about the profit concern organization, chapter 1, which we studied the partnership final account. In that, we learn how two partners or more partners, they come together and start a business, form a business, and their basic or main objective is profit earning or to maximize the wealth. This is the main motive and objective of any business. That is a profit concern business. And we have a second type of business, which is not for profit concern. So we have first profit concern organization, trading organization, which is called also known as a trading organization or profit making organization. And second, which we are going to study in second chapter, non-trading concern or not for profit concern. Students, as we are studying in Maulana Azad College, I'm an employee of that college organization, and you are a student. The Maulana Azad Education Society is an organization which is a not-for-profit concern organization. Their main objective is to provide education to the all peoples of the society, all students of the society, especially the minorities. The education is provided at affordable cost. The main objective is what? To provide education to all sections of the society, especially for the minorities. So their objective is not a profit earning. Their objective is not for profit concern organization. The second example, we have a government hospital, Aurangabad Medical College, Aurangabad, where you will go for the treatment. They charge a very less fees. No doubt the college is also charging fees, but a very less fees for the grant denied students. So government medical college charging 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees for the checkup. So their objective is to provide service, not to earn a profit. Second example. Another example, we have charitable trust. As an example, we have an City Club Aurangabad. There are so many organizations. Their basic objective is to provide services to the society and not to earn the profit. So I hope you understood what is not for profit concern organization or accounts of the not for profit concern organization. अब सवाल ये उठता है कि जब इनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कंसर्न नहीं है तो उनका अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाए? हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं और वो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं and they earn a profit and they distribute the profit. लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉफिट का कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. क्या है? अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो इनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इनको चाहिए कैपिटल, पैसा, फाइनेंस चाहिए. तो फाइनेंस ये मीट करते हैं इस अर्निंग से. लोग डोनेशन करते हैं, लोग मेंबरशिप फीस देते हैं, लोग रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं. तो ये सारा फीस जमा करके इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस पे ये सर्व करते हैं. अगर हम आम खास में जो सिटी क्लब औरंगाबाद है, अगर उसकी एग्जांपल लिए तो वहां पर बहुत सारे मेंबर्स है. सो मेंबर्स पे देयर एंट्री फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, मंथली सब्सक्रिप्शन or lifetime membership, and some of the industrialists, they pay the donation because they are working for a noble cause, health and hygiene. So some industrialists or businessmen pay their donation to this organization which is called the not for profit concern. अब यहाँ से इनके सोर्स ऑफ इनकम से इनको पैसा आता है
और ये सोर्स ऑफ इनकम ये सर्व करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। एज एन एग्जाम्पल, उन्होंने अरेंज किया एक फुटबॉल टूर्नामेंट, तो फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज किया तो बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, और ये टीम जो पार्टिसिपेट करेंगे इनके लिए अगर उनको शूज प्रोवाइड करना है, ग्राउंड का मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, कुछ एम्प्लॉयज वगैरह काम करेंगे तो इनको सैलरीज देना है, तो ये सारा यहाँ से पे किया जाता है। जो डोनेशन आया, जो कंट्रीब्यूशन आया, जो सब्सक्रिप्शन आया, इसमें से ये पे करते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि इनको ये पता चल सके कि कहाँ से अर्निंग हो रही है और इस अर्निंग का हम कहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और वो अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट है कि नहीं है। सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, another is not for profit organization. Okay, so we are going to study in today's chapter accounts of not for profit concern. 2.1.2 meaning of not for profit concern. Not for profit concern are those concern which are not started to earn a profit but to give qualitative service to its member and society at a minimum charges. The very first objective of the not-for-profit concern is what? To provide services to a community और इट्स पीपल। जैसा सिटी क्लब में हर कोई जाके नहीं खेल सकता, वहां पर जो भी वहां सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं तो उसके जो मेंबर्स है 100-200 मेंबर्स है, तो उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो कीजिए और जाइए। इसके लिए वो मिनिमम चार्ज करते हैं, मिनिमम चार्ज। Their main objective is to provide social services and to promote art, culture, sports, education, etc. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस चीज को प्रमोट करते हैं। तो पहली बात है आर्ट, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है। जैसे हम सिटी क्लब की एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पर वो एग्जांपल के तौर पर टेबल टेनिस का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट कर रहे हैं, या बैडमिंटन का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो इस पर्पस के लिए वो अपनी एक्टिविटीज सोर्स ऑफ इनकम सर्व करते हैं। या फिर जैसे मौलाना आजाद एजुकेशन सोसाइटी, द मेन फोकस ऑन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो एजुकेशन से रिलेटेड सोसाइटी इस तरह के काम करेंगे। The nature of this concern are different from the profit organization. Not for profit concern collect income through subscription, admission fees, donation, etc. जैसे कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको चाहिए फाइनेंस, पैसा चाहिए, तो फाइनेंस इनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से रहेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन से सोर्सेस है। तो एक कहा गया है सब्सक्रिप्शन, दूसरा कहा गया है एडमिशन फीस, तीसरा कहा गया है कोई डोनेशन देता है, या लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को पे करता है, या कुछ कंट्रीब्यूट करता है मंथली एनुअली। तो वो सारा इनका सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। गिवन बाय द मेंबर्स और नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट सब्सिडीज और कंसेशंस। तो गवर्नमेंट कभी कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स आती है, तो होती है गवर्नमेंट ग्रांट्स एसेट्रा। तो ये इनके सोर्सेस ऑफ इनकम है, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है और जब रिकवरी होती है, गवर्नमेंट जब देती है, जैसे कि 1 लाख का आपको लोन दिया गया है और आपको जब रीपे करना है तो सिर्फ 80% रीपे करना है, 20,000 आपको सब्सिडी है, तो 20,000 यहाँ सब्सिडी कंसर्न की जाती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, फीचर्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। The primary objective of such concern is to provide services to its member and not to earn a profit. सबसे पहली बात कि क्या प्रोवाइड करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्निंग बिल्कुल ही नहीं है, नॉट अर्निंग अ प्रॉफिट। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव फीचर्स बताया गया है, दिस कंसर्न ऑन फॉर्म फॉर प्रमोटिंग आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी, हेल्थ एसेट्रा। तो पहली बात तो बताई गई कि प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना है। सेकंड बात बताई गई कि किसी चीज को प्रमोट करने के लिए हो सकती है, या कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग है, तो उसी के लिए भी एक संस्था हो सकती है। कोई कल्चरल एक्टिविटी है, प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है,
कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज है, ड्राइंग कंपटीशन है, स्पोर्ट्स का है, या चैरिटी हेल्थ एक्टिविटी है, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है कहीं पर, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है। थर्ड जो पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, इट इज प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड किया गया है, मना कर दिया गया है कि ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? जैसा कि हमने इसके पहले देखा है कि अगर कोई भी बिजनेस ले लीजिए, लार्ज स्केल बिजनेस है, वहां पर आपने शेयर्स परचेस किए हैं, इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। वो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो आपको डिविडेंड की शक्ल में 5%, 10% हर साल आपको डिविडेंड आता है अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ जो इसके मेंबर है, 100 है, 200 है, जितने भी मेंबर्स है, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकता। इट इज प्रोहिबिटेड, मना किया गया है। फोर्थ पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। इट इज गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो चलाता है, देखरेख करता है, डायरेक्टर होता है या सेक्रेटरी होता है, तो ये कैसा होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जितने मेंबर्स है 200 मेंबर, वो आएंगे, वोट डालेंगे, वो कास्ट करेंगे अपना, और इनका रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिफ्थ पॉइंट, दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंट्स बनने वाले हैं आपके, these concern prepare receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. So here, instead of preparing trading and profit and loss account, they prepare receipt and payment account, they prepare income and expenditure account, कहाँ से रिसीट हुआ और कहाँ पेमेंट किया, कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, और बैलेंस शीट, जैसे कि असेट्स और लाइबिलिटीज होती है हर बिजनेस में, तो इन्होंने क्या असेट परचेज किया है वो रिसीट से, और क्या पेमेंट किया गया है, तो वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट और final point, capital fund. Capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donation specially received for capital fund. अभी तक जो कंसर्न प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर कैपिटल लेके आते थे, लेकिन यहाँ पार्टनर नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव अलग है। तो यहाँ कैपिटल फंड जो रहेगा किसी एक्टिविटी के लिए करने के लिए साल भर, तो कैपिटल फंड कहाँ से कंट्रीब्यूट कलेक्ट किया जाता है? ये इंट्रेंस फीस में से कोई पार्ट लेते हैं, या उस साल कुछ बच जाता है, सरप्लस हो जाता है। मान लीजिए कि 2 लाख रुपए आए और 1.5 लाख ही रुपया आपका खर्चा हुआ, तो जो 50,000 रुपये बच गया उसको कहा जाता है सरप्लस। या लेगेसीज, किसी ने विल, वसीयत कर दी कि भाई मेरे मरने के बाद ये वाला आपको चैरिटी में डोनेशन कर लूंगा मैं, तो वो लेगेसीज या डोनेशन सबका सब कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। तो हमारा आज का एक टॉपिक था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, हमने 3 पॉइंट कवर किए। तो आप चैप्टर रीड कीजिए, वी हैव टू कवर दिस चैप्टर विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, थैंक यू।